Namaste bachcho. We have discussed about molecular orbital theory, what molecular orbital theory says. We have discussed about different shapes of molecular orbitals. Now today we will be discussing about molecular orbital diagram and how the electrons to be filled in these molecular orbital diagrams. So let's start. First, in our syllabus is present homodiatomic molecules. Only homodiatomic molecules is present, and that too of second period. So we will be restricting our molecular orbital diagram towards 1s, 2s and 2p. That means only 3 orbitals we will be considering, 1s, 2s and 2p, because only homodiatomic molecules of second periods is involved here. Let's see. First I am drawing the 1s. This is 1s atomic orbital. This is how we will be drawing. This is 1s atomic orbital. Now we know that by overlapping of ss orbital, 2 molecular orbitals will be formed. One is bonding and one is anti-bonding. Bonding of lower energy, that is why I have drawn it like this. This is the sequence of energy. Upwards we will be going, then the energies of molecular orbital will be increasing. This is bonding and this is of high energy and this is anti-bonding. Now by ss overlapping, bond formed is sigma. So we will name it as sigma 1s. 1s why? Because it is formed by overlapping of 1s orbital, and this is sigma star 1s. Now after 1s the atomic orbital come is 2s. So let's draw the diagram of 2s. Now this again 2s will be same like 1s. One atomic of 2s is having one atomic orbital. So by combination of 2 atomic orbital, 2 molecular orbital will be formed, one of low energy and other of high energy. This is sigma 2s and this is anti-bonding, that is why it is represented by sigma star 2s. After 2s the atomic orbital will be 2p. Now p is having 3 orbitals like this, 1, 2, 3. So 6 molecular orbitals will be formed in this sequence. One, two, and 1. Now you can see after combination of 6 atomic orbitals, 6 molecular orbitals will be formed. 3 will be bonding, that is why they are of low energy, and 2 will be anti-bonding. These 2 orbitals are formed by combination of px and py. So we will designate them as pi 2px and pi 2py. This one which is present singly is formed by overlapping of pz orbital. So it is designated as sigma 2pz. Again these 2 are anti-bonding. So only we have to write down star over here. So it's pi star 2px और इसे हम लोग कहेंगे pi star 2py. और जो सिंगल ऑर्बिटल एक अकेला पड़ा है, this is anti bonding sigma star 2pz. First of all, we should always draw the MO diagram like this. These are the atomic orbitals over here, and in the center we are forming molecular orbital. This MO diagram will be till nitrogen. Means if we are asked for hydrogen, helium, lithium, beryllium, Li2, Be2, B2, C2, N2, and their charged ions, then we will be following this diagram. But for oxygen, fluorine and neon, 1s and 2s will remain same. The change is in 2p orbital. What will be there? For oxygen, fluorine and neon, the energy of sigma 2pz will be lower than pi 2px and pi 2py. So I will be drawing sigma 2pz below and pi 2px and pi 2py above, like this. This is sigma 2pz. We know that the single orbital present is sigma and these 2 are pi. Rest is all same, like this. This is 2p, this is 2p, but this is sigma 2pz, this is pi 2px, this is pi 2py, this is pi star 2px,
pi star 2py and this is sigma star 2pz. Again let me tell you what I am trying to say. अगर हमारे पास नाइट्रोजन तक कोई भी एमओ डायग्राम बनाने को आ जाता है तो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3. इस तरफ जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं these are atomic orbitals. ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हम लोगों ने डेजिग्नेट कर दिए हैं. कैसे बनते हैं ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. अभी जो मेरे पास नाइट्रोजन तक जो एमओ डायग्राम बनेगा उसमें पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू सिग्मा 2pz. इसीलिए मैंने जो ऑर्डर चल रहा है वो चल रहा है 2 1 2 1. लेकिन अगर हमारे पास ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नियॉन, ये जो एमओ डायग्राम है ये किस किस के लिए, O2, F2 एंड Ne2, इसमें से किसी का एमओ डायग्राम बनाने को आता है बच्चों तो हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा 2pz, देखो मैंने 1 2 2 1 चल रहा है, यहाँ 2 1 2 1 चल रहा है. कहने का मतलब सिग्मा 2pz की एनर्जी कम हो जाएगी और पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी. तो इस बात को ध्यान रखना है, अदरवाइज बच्चे जो है वो गड़बड़ कर देते हैं. तो ये मैंने सिग्मा 2pz की एनर्जी कम कर दी इसलिए इसको नीचे बनाया. तो सीक्वेंस रहेगा 1 2 2 1, बाकी सब क्या रहेगा, सेम रहेगा. अब इस एमओ डायग्राम में हम लोगों को इलेक्ट्रॉन बनने हैं. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास जो एमओ डायग्राम है वो N2 का है. अभी N2 कैसे बना होगा, दो नाइट्रोजन के एटम्स दे विल कंबाइन विद ईच अदर फॉर्मिंग N2. नाउ नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p3. अब मुझे इसका एमओ डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले मैंने जो ये स्ट्रक्चर बनाया है मैं इसको बनाऊंगी. अभी दो नाइट्रोजन, इस तरफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आएंगे तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, N लिखूंगी और यहाँ भी N लिखूंगी क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल है. इन दोनों को जोड़ने से क्या बन जाएगा, N2, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नीचे लिखूंगी N2. नाउ नाइट्रोजन में देखिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s में 2 हैं और 2p में 3 हैं. लेट्स फिल दिस इलेक्ट्रॉन्स. 1s में 2 दोनों तरफ, 2s में 2 एंड 2p में 3. Now let's fill the electrons in molecular orbital. Total electrons कितने भरने हैं, 1 2 3 4, ये बीच में भरने हैं, सेंटर में भरने हैं. Let's fill the 4 electrons following Aufbau, Pauli and Hund's rule. तो 1 2 3 4. अब इसमें भरते हैं 1 2 3 4. इसमें कितने भरने हैं, 3 and 3 6 1. अभी इसी में नहीं डालेंगे, पेयरिंग नहीं करनी है. Hund's rule क्या होता है, जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आता तब तक पेयरिंग नहीं करनी है. अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, अब पेयरिंग करेंगे 3 4. सिग्मा में क्यों नहीं डाला पहले, बिकॉज अकॉर्डिंग टू Aufbau प्रिंसिपल लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड फर्स्ट. इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर है और इनकी एनर्जी कम है तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरने पड़ेंगे फिर ऊपर जाएगा. अब इस 5 इसमें भर देंगे, ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि वो हायर एनर्जी के हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए. ठीक है, अभी मैंने इलेक्ट्रॉन्स जो है भर दिए. अब लेट्स सी हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं. फर्स्ट चीज जो हम लोग बच्चों कैलकुलेट करेंगे दैट इज मैग्नेटिक करेक्टर. अगर हम लोग मैग्नेटिक करेक्टर को देखेंगे, अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑर्बिटल में पेयर्ड हैं तब तो वो होगा डायमैग्नेटिक. अगर एक भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक. लेट्स सी, इसमें तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, इसका मतलब जो मेरे पास नाइट्रोजन है दैट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर. क्यों है डायमैग्नेटिक, बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड. नाउ वी कैन आल्सो राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. दिस वन इज from here we will start till the point where we have filled the electrons. Let's write the electronic configuration. Electronic configuration of N2. ये सिग्मा 1s है, ये सिग्मा स्टार 1s है, इसको हम लोग K लिखेंगे. Means K shell is first shell is completely filled. Let's move sigma 2s 2 in square bracket we will be writing. Then sigma star 2s 2. जहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ तक लिखते जाएंगे. फिर pi 2px 2 is equal to pi 2py 2. Then sigma 2pz 2. बस यहीं तक हम इसको लिखेंगे, आगे नहीं लिखेंगे. क्यों, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है सिग्मा 2pz में है.
पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो वी विल नॉट रिप्रेजेंट इट ओवर हियर। हाँ, अगर वहां पर भी इलेक्ट्रॉन होते तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आगे कंटिन्यू करते। तो इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहीं तक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भरे हुए हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। इसके अलावा हम लोग एक और चीज निकाल सकते हैं, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? जो एटम्स के बीच में बॉन्ड। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। Nb क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO। अभी हम लोग सिर्फ 2p का भी चेक कर सकते हैं। और Na क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। लेट्स सी, बॉन्डिंग में कितने हैं? सिर्फ 2p देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 नीचे वाले बॉन्डिंग थे, और बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। एंटी बॉन्डिंग में चेक करो, ऊपर तो कुछ भी नहीं है, तो मैं लिखूंगी 0 डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 3। कहने का मतलब जो 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं उनके बीच में कितना बॉन्ड है? 3 है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भरते हैं। अगर मेरे पास ऑक्सीजन का एमओ डायग्राम आता तो मैं ये दोनों तो बनाती ही, लेकिन 2p में ये बदलने की जगह हम लोग क्या करते हैं? ये बनाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है एमओ डायग्राम्स को भरते हैं। थैंक यू। Namaste bachcho. In last class we discussed about how to draw the MO diagram and how to fill electrons in the MO diagram. Now today we will be discussing